The critical role of teachers play in student lives. This webinar aims to this particular today's webinar also is one of the you can say the webinar series. It's aimed to equip the educators with knowledge and skills to identify the signs of mental distress, provide appropriate support, and create a conducive environment for student well-being. That is more important. Experts in the field of the mental health and education are invited to share their insights and experience, contributing to the professional development of teachers. Mansik Shakti, finally, soliciting support from individuals, organization, social agency for the cause of students' mental health. Now, in few words, I would like to brief about the workshop. Workshop is basically dealing with the challenges of students' psychological health, and the objective is basically awareness and facilitate through discussion about the challenges that are affecting the psychological health of students to explore the strategies for addressing these challenges effectively. So challenges of psychological health is one of the most important part of it. After this particular workshop, the concluding part will be exploring challenges in the students' psychological health, and this particular workshop will aim to facilitate a meaningful dialogue among educators, parents, stakeholders, and about the critical issues impacting the students' well-being. And finally, the deeper understanding of the psychological health challenges and actionable strategies to create a supportive and nurturing environment for students. This is all about the workshop, the background of the workshop, why the workshop is organized here, and why the eminent guest speaker is here to discuss on the students' mental health about it, and this particular workshop will be addressed by him. So I'll hand over this mic to Professor Nandin. Thank you, Professor Kama Sultan for giving us a very illustrious and very detailed, comprehensive introduction about the very honorable and learned guest of the session, Dr. Amresh Srivastava जी. आदरणीय कामरान जी, आपने बहुत ही विस्तृत और विशद परिचय दिया हमारे विद्वान अतिथि का, जिनकी सैकड़ों शोध पत्र और लगभग 3 बड़ी बड़ी पुस्तकें आपकी इस विशेषज्ञता पर आपने समाज के लिए कराई है। आज जबकि समाज में शिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर और तमाम तरह की जो पोस्ट कोरोना डिसीज आ रही हैं, उस कड़ी में हमारे पास में एक विद्वान और विज्ञान संकाय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार जी पांडे जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय सर आएँ और आज के सदन में इस सभागार में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको पहले क्या था, आप रुकेंगे पूरे टाइम तो बाद में करा धर्मेंद्र जी ने बहुत बड़ा टास्क मुझे दिया, वैसे अध्यक्षीय उद्बोधन तो बाद में होता। मैं सोच रहा था कि कुछ सुन के, लेकिन एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और बहुत सारी आज मीटिंग्स हैं, जिसके कारण शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अध्यक्षीय उद्बोधन पहले करें। मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैं सिंपली एक बॉटनिस्ट हूँ। हमेशा बॉटनी पढ़ाई है और बॉटनी ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी लास्ट अबाउट 40 इयर्स मुझे यूनिवर्सिटी में हुआ है और अबाउट 14 इयर्स मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो देखने को मिला है, उसके बेसिस पे खास तौर से मैं आज डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को बहुत धन्यवाद आप सब लोगों की तरफ से, विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आभार भी देता हूं कि उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय को समय निकाल के दिया और उसमें हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षक साथियों को उन्होंने एड्रेस किया। और एड्रेस एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य, नॉर्मली अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये होता है ना कि साइकोलॉजी का मतलब होता है ना कि जैसे पागलपन, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन यदि हम इस पे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे देखें तो कई तरीके की प्रॉब्लम हमारे माइंड्स में चलती रहती है, बहुत सारा। और आज के समय में तो खास तौर से
टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है उसी तरीके से हमारे माइंड में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ रही। मतलब हम यदि स्वस्थ माइंड हमारा नहीं होगा, स्वस्थ माइंड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत हष्ट पुष्ट होना चाहिए। शरीर कभी कभी बहुत हष्ट पुष्ट दिखता है, लेकिन माइंड यदि सशक्त नहीं है तो उस शरीर का भी कोई मतलब नहीं रहता है। एक दो उदाहरण के तौर पे मैं खास तौर से बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय, मैं कैंपस में जाता हूँ तो क्लास के बाहर सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का मोह नहीं छोड़ पाते। सबके हाथ में मोबाइल, दो बगल में सहेलियां भी बैठी हैं तो बजाय दोनों साथ में बैठे ऐसा लगता है कि दोनों फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों की दो दुनिया है, दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। मोबाइल इवन क्लासरूम के अंदर मैंने देखा, कई बार हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, देखते हैं कि क्लासरूम में भी मोबाइल का मोह। और इसके लिए ज्यादा मैं डिटेल तो खैर सर हैं यहाँ पे श्रीवास्तव साहब, लेकिन एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोट्रैक। आप लोग इसको देखिएगा, नेट पे है। टेक्नोट्रैक क्या है? और एक वर्ड है नमोफोबिया। ये दोनों वर्ड जरूर हमारे विद्यार्थी लोग इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। नमोफोबिया का मतलब होता है कि नो मोबाइल फोन्स फोबिया। अक्सर क्या होता है कि हम सोते जागते मोबाइल फोन्स पे इतने रहते हैं कि 1 घंटे रिंग नहीं बजी तो हमको लगने लगता है कि बेचैनी हो जाती है कि आज मोबाइल फोन क्यों नहीं आ रहे हैं। ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है। टेक्नोट्रैप, टेक्नोलॉजी से हम इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं, जैसे कभी सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारा समय हमारा ऐसा व्यतीत होता है, घंटों बच्चे जो है, बच्चे ही नहीं आजकल तो सभी लोग सोशल मीडिया और इसका उपयोग जो करने लगते हैं, उससे आपको पता है कि आपके पास कितना स्ट्रेस होता है। देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स। ये फैमिली कोर्ट में आप अभी हम लोग थोड़े दिन एक जैसा फैमिली कोर्ट के मिले, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो परिवार के टूटने का भी बहुत बड़ा कारण हो गई। मतलब ये जो सोशल मीडिया एडवांसमेंट हो रहा है उसके कारण नो डाउट कि इंफॉर्मेशंस बहुत सारी आ रही है, लेकिन वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा हैं उनमें बहुत बड़ा एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है, माइंड का इतना ज़्यादा चेंजेस उनमें हैं कि वो देखते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। नॉर्मली टेक्नोलॉजी बढ़ती है वो फॉर ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन उसका एप्लीकेशन धीरे धीरे होता है। यही नहीं, आज हम जिस तरीके की डाइट ले रहे हैं, आपने देखा, आप सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छी सब्जी खा रहे हैं, पर उसमें क्या केमिकल है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस करे, अल्टीमेटली हमारे माइंड को। अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, आप लोगों को कहीं मिले तो बुक जरूर पढ़िएगा, लीडर्स इट्स लॉस्ट। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा ऑथर का, मेरे ख्याल से माइकल एक ऑथर है जिसने एक बुक लिखी है लीडर्स इट्स लॉस्ट। खास तौर से मुझे लगता है ये मैनेजमेंट का प्रोफेसर लोग इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम तो मैनेजमेंट के नहीं लेकिन रोज़ देखते हैं कि विद्यार्थी हर आए दिन जो है, आप लोग देखते ही होंगे कि कुलपति को कितनी स्ट्रेस में रोज़ रहना पड़ता है। जब देखो तब विद्यार्थियों से स्ट्रेस, वो बात सभी लोगों से स्ट्रेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जवाब रहते हैं। तो ऐसे समय में लीडर्स इज लॉस्ट ये बुक मिलती है, उसमें एक पेपर है केमिस्ट्री ऑफ वर्क कल्चर। हम लोग सोचते हैं नॉर्मली एक हैकिंग, मतलब कई जगह देखा जाता है खासतौर से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं तो सिर्फ इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर इसको पता नहीं वो इससे सब्जेक्ट से जुड़ा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक उस बुक में एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, केमिस्ट्री ऑफ वर्क कल्चर। नॉर्मली क्या होता है कि कभी इसका एक्सपीरियंस आपको करना है तो बॉम्बे से जो बिहार, यूपी ऐसी जो ट्रेन्स जाती हैं आप उसमें बैठ जाइए नॉर्मल क्लास में, फोटो खींचे तो वो जितने फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जितने लोग बैठे रहते हैं उसमें 90% ये चर्चा करते हैं
कि बिना काम किए हुए हमको तनख्वाह मिलती है, क्या मजे है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई है। गवर्नमेंट में जो एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, वो अपना वर्क कल्चर ही भूल जाता है। उसको सिर्फ एक चीज याद रहता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, बट हमारा मतलब राइट्स तो सबको याद रहता है, लेकिन हमारे जो है कर्तव्य क्या है ये याद भूल जाता है। तो वो सोचता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको लगेगा, उसके साथ आप बैठेंगे ना तो आपको लगेगा। लेकिन उस बुक में जो केमिस्ट्री पूरी बॉडी की बताई है, उसमें देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। वन इज गुड, फील गुड हार्मोन्स। 4 ऐसे हार्मोन होते हैं फील गुड के, उसमें सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन और एक है ऑक्सीटॉसिन। ये जो हार्मोन होते हैं, जब आप सोचते हैं, आपका ब्रेन से डायरेक्ट इसका प्रोडक्शन जो है, बॉडी में इसकी सिंथेसिस से लेके प्रोडक्शन जो है और रेगुलेशन, ये पूरा आपके मेंटल स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करता है। और उसी से जो ये जहां प्रोडक्शन होता है और इसका रेगुलेशन होता है, पूरी उससे डिपेंड करता है आपकी मेंटल सोच क्या है। आप अच्छा सोचते हैं तो फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, और यदि आप नेगेटिविटी की, नकारात्मक नेगेटिविटी सोचते हैं तो आपके दूसरे हार्मोन बनते हैं एड्रेनालिन, और एक है कोर्टिसोल, और एक बहुत सारे बैड हार्मोन्स में हमारी बॉडी में बनते हैं। अब आप बताइए, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी इसलिए है कि आपकी मेंटल मानसिक शक्ति नहीं रहेगी तो आप ये जो बैड हार्मोन्स और गुड हार्मोन्स दोनों में बहुत अंतर नहीं होता। आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। खास तौर से आजकल तो टॉलरेंस हम देख रहे हैं। पिछले लास्ट 40 ईयर से हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, धीरे धीरे अभी आप देखिए रोज पेपर की घटनाएं होती हैं, छोटी सी बात पे स्टूडेंट्स ऐसा एक्सट्रीम डिसीजन ले लेता है जो कि उसके परिवार के लिए, उसके राष्ट्र के लिए कितना खतरनाक होता है। वहीं पे यदि मानसिक शक्ति है तो एक से एक परेशानियां आती हैं जहां लोग उससे फेस करते हैं। आप सोचते हैं कि 40 सालों में हम लोग के जीवन में कभी परेशानी नहीं आई क्या? हम लोग के जीवन के बारे में भी आप लोग कभी बैठिए, बताते हैं कितनी समस्याएं हम लोग को भी रही, लेकिन वहां पे हम लोग कोई एक्सट्रीम डिसीजन थोड़े लिए। लेकिन आज जैसे जैसे थोड़ा सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों को काफी मानसिक जो प्रॉब्लम आ रहा है, संतुलन, जैसे मानसिक संतुलन, मतलब छोटी छोटी चीजों में बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेंटल स्टेटस जो है धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेस के कारण या दूसरे कारण। इसलिए आज जो है ये बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ का मतलब आप बीमार नहीं हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। लेकिन अभी जैसा सब हमारे कमरे में बैठे थे, बात हो रही थी ना, मेंटल हेल्थ का मतलब स्वस्थ माइंड केवल ये नहीं कि आपके सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, बल्कि आपकी सोच कैसी है, आपका मेंटल टॉलरेंस कितना, मेंटल मतलब आपका जो माइंड है वो कितना सशक्त है कि वो किसी डिसीजन लेने के लिए, किसी चीजों को रिएक्ट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। इसलिए मैं खासतौर से कामरान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और श्रीवास्तव साहब जिन्होंने इतनी दूर से आकर के और हमारे अपने साथियों को, हमारे चाहे एम्प्लॉइज हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे विद्यार्थी हों, सबको उन्होंने एक रास्ता, एक जागरूकता मेंटल हेल्थ के बारे में देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद, मैडम जोशी आई हैं इंदौर से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से आगे चल के, अभी साइकोलॉजी हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन हमारी डॉक्टर ज्योति उपाध्याय बैठी हैं मैडम, हम चाहते हैं कि हम लोग का स्टार्ट हुआ है, तो आपके मार्गदर्शन में कुछ हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, हम युवाओं को डील करते हैं, युवाओं को तैयार करते हैं और उनकी मानसिक शक्ति को भी नियंत्रित या उनको बढ़ाने में हमारी
यूनिवर्सिटी काम करे इस तरीके से। मैं आपके मार्गदर्शन में, मैं चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में विक्रम विश्वविद्यालय इसमें बहुत आगे बढ़े। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज भी, मुझे उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज भी हमारा प्रयास चल रहा, हमारी टीम आने वाली है, शासन से टीम बन चुकी है और बहुत जल्दी हम मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी उस पर भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सभी लोगों के सहयोग से ही संभव है और मैं श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ ऐसे अर्जेंट इलेक्शन भी है जहाँ हम लोग को थोड़ा सा व्यस्तता है, लेकिन मैं उनसे डिस्कस करूँगा। मैडम ज्योति बैठी हैं, आप इसको थोड़ा प्रयास करके इस पर प्रपोजल बनाइए, हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यही कुछ फील्ड हमारे विश्वविद्यालय को छूटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल हेल्थ को छोड़ के बाकी आज विक्रम विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसे कोर्स नहीं है जो यहाँ पे संचालित ना हो रहे हों। मेडिकल भी बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे और उसके साथ में ये तो बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी फील्ड है। मैं कोशिश करूँगा कि आप जब अगली बार आएंगे तो एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको साइकोलॉजी का, खासतौर से क्लिनिकल साइकोलॉजी मिलेगा। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। आदरणीय माननीय कुलपति जी ने अपने विचारों को बहुत ही मैं आपसे फ़ोन पर बात संक्षिप्त में लेकिन पूरी गहराई से प्रस्तुत किया। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति धन्यवाद देता हूँ। नंबर दे देना, मैं बात करूँ। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लोग, हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी टोरंटो से पधारे प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, इनके बारे में अतिथि परिचय पहले ही किया चुका है। मैं माननीय डॉक्टर अमरेश श्रीवास्तव से निवेदन करूँगा कि वे आएँ और अपने सत्र को विशिष्ट व्याख्यान से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय अमरेश जी। तो आप बनवा लोगे या सर्कुलेट करा लोगे? हाँ, हाँ, अच्छा, तो सर्कुलेट सभागृह में उपस्थित हमारे प्रोफेसर्स, कुलपति जी, रजिस्ट्रार जो हमें अभी उसी कार्य में गए हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और उज्जैन के युवाओं के बीच आना ये एक सौभाग्य है और मैं इसको एक अलग तरीके से देखना चाहता हूँ और आपसे जुड़ूंगा। आज के छात्र, पहली बात तो हम ये समझ लें कि छात्र हैं क्या, वो चाहे 12 वर्ष का लड़का हो या आगे के लड़का, जो पढ़ता है या किसी भी तरह का ज्ञान अर्जित करना चाहता तो वो कर क्या रहा है? वो नई दिशाएं चाहता है, उसके पास कुछ ज्ञान है, कुछ का अंदाजा लगाता है, कुछ देखता है, कुछ संवाद स्थापित करता है और फिर अपने मन में विश्लेषण करता है और सब मिला के वो चाहता है कि कोई एक प्रकाश पुंज सामने आए और किसी न किसी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, हजारों पीएचडी भारतवर्ष में हर साल, मगर किसी विश्वविद्यालय ने किसी पीएचडी को संकलित नहीं किया। मैंने बहुत ढूंढा, तो एक तरफ तो हमारे छात्र मेहनत कर रहे हैं, नई नई बातें ढूंढ रहे हैं, नया तरीका निकाल रहे हैं, नजदीक से और दूसरी तरफ वे सारी बातें, उनमें से अधिकांश दुख के साथ कहना पड़ता है कि
वे उन लोगों तक नहीं पहुंचती जिनके लिए ये किया गया। तो हमारा पहला चैलेंज, हमारी पहली चुनौती ये है कि हमने मेहनत तो बहुत की, निष्कर्ष भी निकला, मगर मामला आगे नहीं बढ़ा। मैं आपको अपनी थीसिस का उदाहरण देता हूं। 1979 मुंबई शहर का के अस्पताल, विषय था कि लोग कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आते जाते हैं। पहले ऐसी धारणा थी कि जिन लोगों को मानसिक बीमारी होगी वे अलग से आएंगे डिपार्टमेंट में, कि कैजुअलिटी में क्यों आएंगे जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उन्हें मन की तकलीफ है, तो मुख्य धारा में क्यों आएंगे। तो विषय यह था कि क्या ये सच है कि धारा में कुछ बदल रहा है, और यदि ये सच है तो हमें क्या करना। हमारे गुरु थे प्रोफेसर शाह, अब नहीं रहे, इसलिए 1979 में ये थीसिस की गई और उसमें निष्कर्ष ये निकला कि अधिकतर मानसिक बीमारियां जिससे लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए वो जनरल हॉस्पिटल में जाते हैं, वे साइकोटिक नेचर के नहीं है, उसमें कोई वायलेंट नहीं होता, उसमें कोई किसी को डराता नहीं है, वे न्यूरोटिक नेचर की होती है, सीने में धक धक होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस जाता है। तो ये बात तो आज से इतने सालों बाद मालूम थी, लेकिन हमारे अपने उस कल्चर में जहाँ मैं काम कर रहा था ये स्थापित करने का प्रयास किया गया, मगर क्या ये बात लोगों तक पहुंची? कुछ बदला? कुछ नहीं। आज भी अगर सड़क पर हम किसी से पूछेंगे कि मानसिक बीमारी का मैनिफेस्टेशन यानी प्रारूप क्या है, तो क्या कहेंगे? आदमी विक्षिप्त हो जाता है, हत्थे से बाहर हो जाता है, मारने लगता, चिल्लाने लगता। ये सच नहीं है, मगर हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं विश्वविद्यालयों में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए। हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ने के लिए, मगर ये सब करने के बाद भी हम फेल हो गए। अब थीसिस का दूसरा चरण देखिए, क्या किया जाना चाहिए। तो हमने कहा हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट में पॉसिबल नहीं है, मगर उनकी जरूरत भी है क्या? खैर, निष्कर्ष ये निकला कि यदि हम किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल 2000 बेड का हॉस्पिटल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर को बिठाएं और ये कहें कि सबसे पहले तुम उस मरीज से बात करो, फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, तो हॉस्पिटल्स पर पड़ने वाला बहुत सारा बोझ कम किया जा सकता है। So this was a new model, very new, innovative model, that you transfer the burden of examining a patient, the planning the care from a medical doctor to a non-medical mental health professional. Very novel, innovative model. आज आप देखेंगे तो दुनिया की सारी संस्थाएं यही बात करती हैं। We want, nobody talks mental health doctor, everybody talks mental health professionals. तो वो कौन है? तो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट है, रिलैक्सेशन थेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम थेरेपिस्ट है, पीपल हु आर वर्किंग विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को हजारों हजार। मगर समाज में ये धारणा पहुंच रही है। क्या हमारा विज्ञान, क्या हमारी शिक्षा हमें लोगों तक ले जा पा रही? और यही काम रिसर्च में हो रहा है। ड्रग ट्रायल हो जाता है, मगर जिन मरीज पर वो ड्रग ट्राई की जाती है उन्हीं तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचती।
वो भी भटकते रहते हैं कि क्या इस बीमारी की कोई नई दवाई है। जिसका पहला हक है सूचना पर, वही उससे वंचित है। मैं विषय को इधर उधर ना ले जाते हुए सीधे आपसे कह रहा था कि हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और विचार और आध्यात्म सबके बीच में सेंट्रल कैरेक्टर क्या है? तो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा, इसलिए भगवान ने उसे इतना संभाल कर हमारे शरीर में रखा है, बहुत वेरी हाईली प्रोटेक्टेड है। अब अगर हम ये कहें कि मस्तिष्क के बारे में सोचे बगैर मन के बारे में सोचे और मन के रोग के बारे में भी सोचे, तो ये संभव नहीं। मन तक पहुंचने के लिए या माइंड तक पहुंचने के लिए किसी भी शोधकर्ता को मस्तिष्क के रास्ते से ही गुजरना, और मस्तिष्क के बारे में शोध के लिए उसे मन और आत्मा दोनों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैं जो भी आप लाइब्रेरीज, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, उसमें देख सकते हैं, सारी बातें कही जा चुकी हैं, बार बार इसके एविडेंस सामने आते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं यहाँ कुछ ऐसा आपसे संवाद कर सकूं जिससे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की संभावनाएं बढ़े। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हालत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी को बहुत याद करता हूँ। आज के छात्र कौन है? देखिए, हम समझते हैं कि हमारा बच्चा हॉस्टल गया है, यूनिवर्सिटी गया है, सब ठीक है, मगर क्या ये सच है? सच्चाई क्या है? समाज में 10% लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी, चाहे वो आँख की तकलीफ हो या कानों की तकलीफ हो या पोलियो हो या चलने की तकलीफ हो या हड्डी की डिसेबिलिटी, जितने लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी है उनमें से 50% लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती है। उनकी परफॉर्मेंस भी कम होती है, उन्हें गाइडेंस भी कम मिलती है, वो डिस्क्रिमिनेट भी होते हैं, उन्हें बराबर बैठाया भी नहीं जाता। वो अगर क्लास में लेट आएंगे तो कोई बात नहीं है, वो एक अलग बैरा। इसी के साथ साथ अन्य 10% लोगों को फिजिकल इलनेस, वो चाहे अस्थमा हो या आजकल तो हार्ट की तकलीफ हो, डायबिटीज हो, जुवेनाइल डायबिटीज हो, हीमोफीलिया हो, ब्लड की तकलीफ हो। आप खुद देख लीजिए, अपने परिवारों में अगल बगल देखिए कितने बच्चों को फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम। जितने लोगों को फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है उनमें से लगभग 40 से 45% लोगों को या तो हीन भावना से ग्रसित रहना पड़ता है, बच्चे बढ़ते नहीं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, दौड़ नहीं लगा पाते, बगल वाला दौड़ जाता है, ये दुबक के बैठा रहता है। भावनाएं, देखिए, भावनात्मक प्रभाव जो आता है जीवन की सच्चाइयों का, उसकी कल्पना लोग नहीं करते, वे टालते। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये समस्याएं बरसात का वो पानी है जो मेरे घर में नहीं आए, आपके घर में आए। ये हमने सोच लिया है कि हाँ, टेंशन तो है स्टूडेंट्स में, मगर मेरे वाले स्टूडेंट को नहीं। जिसको हो तो हो, फिर उसका जो हो सो हो, तो वो जाने, हम क्या करें। भारत सरकार ने जो मेंटल हेल्थ सर्वे किया 2017 में, उसमें पाया कि अपने देश के हर कोने में, गांव में या शहर में, कम से कम 17.5% लोगों को किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी है।
दुनिया में हम कहते हैं 1 out of 5, 20%, हमारे यहाँ 17 out of 100। तो ये जो हमारे बच्चे स्कूल में बैठते हैं ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा नहीं है कि उन पर ये आंकड़ा लागू नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 सालों के रिसर्च पेपर देखिए अपने देश के, जो यूनिवर्सिटी कैंपस पे छात्रों ने हुए, वो क्या कहते हैं? किसी भी समय 15 से 25% बच्चे डिप्रेशन से परेशान हैं, डायग्नोजेबल डिप्रेशन स्टैंडर्ड। किसी भी समय 5 से 10% बच्चे नशे की आदत से परेशान हैं। किसी भी समय कम से कम 10% बच्चे एक्टिव और पैसिव आत्महत्या का विचार लेकर कैंपस में घूम रहे हैं। करो नहीं करो, क्यों करो? मरना चाहिए, जीना चाहिए। सवाल, और ये मान लीजिए जो शख्स आत्महत्या का प्रयास करता है वो पहले उसके विचार से ग्रसित होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे विचार ना आया हो उसने अटेम्प्ट किया हो, नॉट पॉसिबल, कोई डायनेमिक्स ऐसे नहीं। तो जो शख्स विचार लेकर घूम रहा है उससे ज्यादा हाई रिस्क कोई नहीं। अब इसके आगे चलिए, बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD और जाने क्या क्या समस्याएं, फिर पैसे की समस्या, परिवारों में बीमारी की समस्या, जिम्मेदारियों की समस्या वगैरह वगैरह। अब आते हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीमारी नहीं है। ये तो मैंने बीमारी का आपने दिया, आप खुद उसे बुरा भाग कर सकते हैं कि कितने बच्चे, आप अगर अध्यापक हैं और आपके सामने 200 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जो समस्या विहीन हैं? या स्वयं सोचिए, फिर आप सोचिएगा कि किस शख्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम जो व्यवहार करते हैं या पढ़ाते हैं वो सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए, या हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता है? क्या ऐसे बच्चे हैं क्लास में जिनकी कुछ विशेष आवश्यकता है? जैसे कुछ बच्चे बहुत झगड़ते हैं, कुछ को बहुत गुस्सा आता है, कुछ हमेशा उदास रहते हैं, कुछ सिर्फ मंडे को उदास रहते हैं। बहुत सी बच्चियां हैं महीने में उन्हें मासिक धर्म की पहले तकलीफ होती है, हेडेक रहता है, काम नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं लगता है, स्कूल नहीं आना चाहे, काम की जगह नहीं जाना चाहे, उन्हें जबरदस्ती आना पड़ता है। क्यों? तो क्या आप समझते हैं कि सब is there a uniformity existing in your classroom? And if it doesn't exist, is it your duty or our duty to find out what are the special subgroups? हम अपने छात्रों की समस्याओं को, ठीक है, सरकारें तो आपको ऑर्डर दे देंगी, सरकारें परिवर्तन नहीं लाती, ये आप जान लीजिए। इस देश में सबसे बड़ा परिवर्तन छात्रों की समस्याओं से आया, वो था गुजरात में मेस के खाने का भाव बढ़ गया, जयप्रकाश जी का आंदोलन वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद देश की जो हालत है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि छात्रों की समस्याओं को अनंत काल तक के लिए आप धकेल सकेंगे, आप इस बुलावे में न रहें। हमें प्रश्नों के उत्तर चाहिए और हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे छात्र ही देंगे, क्योंकि पुराने नुस्खे काम नहीं कर रहे। The old prescriptions are not working। वो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उज्जैन हो या कोई भी शहर, हमारे वैचारिक और सामाजिक ट्रांजिशन इतना अधिक हो चला है कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं हम उन्हें एक्चुअली जानते ही नहीं। मैं आपको बताऊं ये कैसे, मैं क्यों कहता हूं ये बात जरूरी है। 5
युवाओं का जो मस्तिष्क, देखिए जब जन्म होता है तब मस्तिष्क का लगभग 85% भाग डेवलप हो चुका, मगर जो 15% है वे जन्म से लेके 18, 19, 20 साल तक उसकी मैच्योरिटी पूरी, तो वो बढ़ता है, दैट मीन्स ब्रेन डेवलप्स, मगर सिर्फ बढ़ता नहीं है, ब्रेन मैच्योर्स, ब्रेन अंडरगोज प्रोसेस ऑफ मैच्योर्स। मगर ब्रेन मैच्योरेशन की खुराक क्या है? ब्रेन मैच्योरेशन की खुराक है एक्सपीरियंस विद एनवायरनमेंट। तो जन्म के बाद बच्चे को जो अनुभव मिलता है, जो सीखता है, उससे मस्तिष्क की कोशिकाएं डेवलप, उसी पर लिखा होता है कि ये आपका इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा, आपकी मेमोरी कैसे बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए ये प्रोसेस चल रहा है जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु। अब उसमें क्या क्या घटनाएं होती है अपने समाज में, देखिए रहने के लिए जगह देखिए, डेंसिटी पर पर्सन, there is no space, there is no space, there is no hygiene, infection is very high, immunity is low, nutrition is very poor। सबसे जरूरी विटामिन है विटामिन 12, जिससे ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं। आप खुद पढ़िए कि विटामिन B12 जन्म के बाद बच्चों में और प्रेगनेंसी में माताओं में उसकी क्या हालत है। सरकारों ने नए नए प्रोग्राम चलाए हैं, बातें चीजें बदल रही हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आज के बच्चे मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हैं। हम जरूर कहते हैं उन्हें कि भाई आप सोशल मीडिया में एंगेज है, मगर वे मल्टीटास्किंग करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन सोशली अलग तरह से डेवलप है। और अब हम कितनी तरह की ब्रेन जानते हैं, देखिए एनाटॉमिकल ब्रेन, उसकी रचना क्या है, फंक्शनल ब्रेन वो काम कैसे करता है, सोशल ब्रेन सामाजिक रूप से ब्रेन और मस्तिष्क में क्या परिवर्तन है, और उसके बाद कॉग्निटिव ब्रेन, मतलब आप जो पढ़ते लिखते नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, संज्ञानात्मक शब्द बहुत कठिन है, संज्ञानात्मक मस्तिष्क, और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल ब्रेन। अब आप अलग अलग तरह के बच्चों के बारे में सोचें। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पोलैंड की स्टडी है जिसमें 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों को जिन्हें पाला गया था एक्सट्रीम इन्वायरमेंट ऑफ नेग्लेक्ट, वे अलग कर दिए गए थे वहाँ से, बाप से, खाने की तकलीफ, इन्वायरमेंट डिफिकल्ट, और उनकी ब्रेन का एमआरआई किया गया और उनसे कंपेयर किया गया कि जिनमें ये जो हेल्दी डेवलपमेंट क्या फर्क आ रहा है। द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन, जिन बच्चों में नेग्लेक्ट था उनका ब्रेन पतला, रोबस्ट। आज हम जानते हैं कि जब उसके आगे की पेट स्कैन या और सोफिस्टिकेटेड ब्रेन स्कैन से हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या मालूम होता है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर अगर किसी चीज का पड़ता है तो वो है माता से उसका अभिभाव, पिता का ना होना, वात्सल्य की कमी और अब्यूज, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज। कहना अनुचित नहीं होगा, भारत सरकार ने 15 साल पहले रिसर्च किया कि भाई सेक्सुअल अब्यूज हमारी कम्युनिटी में कितनी, 30%, मोर देन 30%। या रिफर कर लीजिए रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने छात्रों के जीवन की सच्चाइयों को सुनना और समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें उनके साथ बैठकर नए रास्ते खोजने की आवश्यकता है। अब नए रास्ते हम क्या खोज सकते हैं? देखिए हमारे विषय की एक और सच्चाई है, वो है कि हम ये भी जानते हैं कि किसी की प्रतिभा को कैसे निखारना, किसी की प्रतिभा अगर छुपी हुई है तो उसे कैसे गाइड करना।
और अगर हम यही नहीं, हम उसे कॉशन भी दें कि ये काम आप मत करो और ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऐड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेक्टर। मगर अल्टीमेटली अंत में तो अपने छात्रों को अपना जीवन हाथ में लेना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि वे अपने जीवन सुधार के कार्यक्रम भी हाथ में लें, मानव कल्याण के कार्यक्रम हाथ में लें, जिसमें वैज्ञानिक रूप से मैंने मुख्य 4 बातों के बारे में मैं कहता हूँ। वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति कैसे बढ़े, हमारे जो रिस्क फैक्टर है, जो खतरे हैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के, उन्हें हम कैसे पहचानें, वे कौन कौन से ट्रीटमेंट उपाय या इंटरवेंशन है जो हम करें और वही क्या तरीका है जिससे हम अपने आप को इवॉल्व कर सकें, अपने आप को विस्तृत कर सकें। इसमें अर्ली डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट बाय साइकियाट्रिस्ट, prevention by psychological intervention, counseling, food, exercise, yoga, yogic sciences, lessons from Bhagavad Gita, lessons from Gautam Buddha, science of moderation, exercise, communication, discipline, patience, जिज्ञासा। इससे क्या हो? इससे होगा उन मरीजों में जिनमें होप एंड ऑप्टिमिज्म की मात्रा अधिक पाई गई, ये भी पाया गया कि वे अस्पतालों में कम दिनों तक एडमिट थे, उन्हें दर्द कम हुआ, उन्होंने अपने बुरे दिन को अच्छी तरह से झेला। तो हमारे पास कुछ तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे देखना, सुनना, समझना, मगर उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल वर्च्यूज हैं जो हम कहते हैं hope, optimism, trust, faith, resilience, religiosity, spiritualism, well-being। मगर हम इन गुणात्मक कारणों की तरफ ध्यान नहीं देते। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों से कहें कि अपने आप को पहचान, इंट्रोस्पेक्ट एवरी डे, स्पेंड टाइम इन मेडिटेशन फॉर 10 minutes, try to recognize and find the purpose of life। अपने जीवन का निर्णय कैसे लेना, अपने निर्णय लेने में पिताजी का साथ चाहिए, ये एक अलग मामला है, मगर मेरा निर्णय वे लेंगे या कोई और लेगा, तो इसका अर्थ यह है कि मैं अपने बारे में निर्णय करने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसा है नहीं, मगर कुछ प्रभाव है उनके ऊपर। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें कि कब ना कहना है, अगर कुछ नहीं कहना है तो लर्न टू से नो एंड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर ऐसा है कि यू डू नॉट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, देन यू बेटर रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, पहचान लो अपने आप। अगर ऐसा है कि मेरी क्षमताएं कम हैं, तो क्षमताओं को बढ़ाएं। मार्कशीट बात नहीं करती, वे हमारे व्यक्तित्व का सिर्फ एक पैरामीटर, एक मापदंड बताती है। मार्कशीट के धोखे में जिन लोगों ने जीवन का रास्ता चुना है, उन्होंने धोखा भी खाया है, वो फेल भी हुए। सारी बातें मैंने शायद काफी कुछ समेटने की कोशिश की, बहुत कुछ जरूर रह गया है, लेकिन जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसमें मुख्य है संवाद स्थापित करना, कोर्सेज बनाना। हमने 3 कोर्स डेवलप किए हैं। These are called courses of practice and principles of mind sciences, understand your mental health and self development। ये तीनों कोर्स मैंने द्रौपदी महोदय को कहा है कि अगर आप चाहेंगे और अगर आप उज्जैन के युवाओं के लिए इसे उपलब्ध कराने में कुछ करेंगे तो मैं आपका आभार मानता हूँ। इसकी आवश्यकता कहीं न कहीं से, अगर सही ज्ञान आपको नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं से गलत सलत बातें आप पढ़ेंगे और अपने जीवन को दुख में डालेंगे। मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जरूर, अगर कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उत्तर देने के लिए
अवश्य उसका प्रयास करूँगा अगर समय है हमारे पास। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्कृष्ट मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नए नए रास्ते खोजने पाने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आपके गहन अध्ययन और शोधों पर इस रुचिपूर्वक व्याख्यान के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। मुझे कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दो विद्यार्थियों के प्रश्न मुझे मिले हैं। प्रिंसी जैन का एक प्रश्न आया है, MBA की विद्यार्थी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की। प्रिंसी का बहुत ही एक बाल सुलभ प्रश्न है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अपने आप को किस तरीके से अपने विचारों को रिफाइन करते हैं और रिडिफाइन करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आया है वो मुझे मिला है, दूसरा प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है अवनी दुबे से। आप भी पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्थान के विद्यार्थी हैं। आप पूछ रही हैं कि सर हमारी नियमित जीवन शैली को हम कैसे ठीक करें। दो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। और प्रश्न भी हो तो कृपया मुझे स्लिप से भेज दें। इन प्रश्नों को बाकायदा मैं आपके माध्यम से सदैव सामने रखूँगा। इन प्रश्नों के लिए धन्यवाद। बहुत रोचक और सामयिक प्रश्न। देखिए, जीवन में हमें हर मोड़ पर कोई ना कोई एक्साइटमेंट मिलता है। कभी साइकिल नहीं थी, फिर साइकिल आ गई, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, फिर ऐसा हो गया कि आप शादी के लिए बीवी को कैरी पे बिठाइए और घूमिए। फिर टेलीविज़न आया, फिर कलर टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट आया, और आप अब जिस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं सोशल मीडिया। देखिए, हमें एटम बम नहीं मिला, हमें एटॉमिक एनर्जी भी मिला। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी से दो बातें मिली। किसी ने बम बना दिया, किसी ने उसे कन्वर्ट कर दिया और पॉजिटिव एनर्जी बना दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया और बहुत कुछ बना। यही हालत इंटरनेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते हाउ टू रेगुलेट आवरसेल्फ। तो कमी किस बात में? डिसिप्लिन, पेशेंस, इन दोनों का जो तालमेल जीवन में चाहिए। देखिए, समस्या सोशल मीडिया नहीं है, समस्या आवर एबिलिटी टू रेगुलेट आवर हैबिट ऑफ सोशल मीडिया। सो अगर आप कंटेंट लिखा चेंज कीजिए तो आता है द प्रॉब्लम इज आवर एबिलिटी, देन द प्रॉब्लम इज आवर एबिलिटी टू रेगुलेट। तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि हमें अपने क्षमताओं को विकसित करना है। तो मान लीजिए किसी को अल्कोहल की आदत है, तो वो क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल। किसी को चरस की आदत है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल। कोई बाजार में जाता है, देखता शर्ट हाँ है तो 10,000 की, मगर खरीदी, तो ये क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल ग्रेटिफिकेशन। अभी देखा, मजा आया, चाहिए। Inability to control gratification. So that's a problem. So you know that you have problem, and you refuse to accept it. मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोस्पेक्ट, आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज देयर दैट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, हाउ डू आई गो अबाउट इट। श्योर, मेनी से about 25% है मूड प्रॉब्लम, उनको डिप्रेशन लगता है, वो एंशियस हो जाता है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया क्या है? थिंग्स दैट वी कैन डिपेंड एंड रेगुलेट इन अवर लाइफ हैव डिक्रीज्ड। जैसे पहले था कि आप किसी भी शहर में जाइए, प्यास लगे तो खटखट कीजिए, बोले पानी, तो आप जाते थे, मगर इस विश्वास के साथ जाते थे कि पानी मिलेगा। फिर उसके बाद लोग कॉलेज में आए, दोस्त बने, तो अपने घर में खाना नहीं, दोस्तों के अंदर खा लिया, मगर विश्वास था कि हम जाएंगे तो मुझसे पूछे बगैर लोग खाना नहीं खाएंगे। ये विश्वास समाज में टूटा है, मगर मोबाइल आपको धोखा नहीं दे रहा है, वो बराबर यूट्यूब बजा देता है।
So the credibility of the instrument is very high, and you are depending upon this credible instrument more than what you should. समस्या अपने मन और मस्तिष्क को समझने की है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो ये क्षमता विकसित ना कर सके कि कल से मैं मोबाइल 10 मिनट देखूंगी या 2 घंटे देखूंगी, उसके बाद नहीं। तो ये मेरा जवाब है। दूसरा प्रश्न क्या था? एक प्रश्नकर्ता बैठे हुए हैं, उनका प्रश्न व्हाट्सएप पे आया है। बहुत ही रोचक प्रश्न आया है। हमारे सहयोगी हैं विश्वविद्यालय के सहायक सचिव श्री GS बराड़ साहब। आदरणीय सर, परिस्थिति के अनुसार इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कृपया गाइड करें। गुड क्वेश्चन। पहली बात तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आप ये समझते हैं और कहना चाहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और इमोशन या भावनाएं ऐसा कुछ हैं जो कंट्रोल होगी कर सकते हैं। Our belief that we can manage emotion, our belief that emotions can be managed, our belief that emotions can go up and down, is a fantastic piece of knowledge that you have appreciated. देखिए, मन मस्तिष्क के बीच में जो छोटा मस्तिष्क है, जैसे मिड ब्रेन कहते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, वहाँ भावनाओं का केंद्र है। तो भावनाओं के रेगुलेशन में 4-5 बातें आती हैं। अगर हम उनको जान लें तो हमें आसानी होगी। हमारी प्रकृति में स्वस्थ और अस्वस्थ, यानी से नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में क्या कुछ बदलता है, वो 4 चीजों में। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सोशल और चौथा है स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंट। नौ इन 4-5 आयामों में जब भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बदलाव होगा, भावनाएं ऊपर नीचे होंगी। मान लीजिए कोई बालक ऐसे माता पिता का पुत्र है जिनमें भावनाओं की बीमारी रहती है, चाहे डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिसऑर्डर या कुछ भी हो, ऑब्वियसली उसकी टेंडेंसी रहेगी और उसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में दिक्कत ज़्यादा आएगी बनस्पत उस शख्स के जो ये नहीं जानता कि घर में आज खाना बनेगा या पैसे कितने आएंगे। The person who is struggling with adverse circumstances, their problem of emotional regulation is very different, because there he has to get accustomed to deficiencies. जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं परेशान होना, तब इमोशनल स्टेबिलिटी होगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हर व्यक्ति में रिस्क फैक्टर्स फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस होते हैं कि हमारे घर में बीमारी थी क्या, हम बचपन से ही ऐसे हैं क्या हमारी सामाजिक या पारिवारिक अवस्था ही ऐसी खराब है, क्या कोई ऐसा है जहाँ हम बात ही नहीं कर सकते, क्या बात करने से मुझे अच्छा लगता है, am I a kind of person who feels good by talking to people? सबको नहीं लगता, हमें गलत नहीं समझना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो माइंड बॉडी रेगुलेशन के लिए काम है। अब आपका अगला सवाल होगा तो हम क्या करें? सबसे बेहतर तरीका ये है कि योगिक साइंसेज यानी योग की प्रक्रिया अपने जीवन का अंग होना चाहिए। फंडामेंटली रेगुलेट एंड डीरेगुलेट का की जो साइंस है वो योग की क्रिया से ही आता है। मैं आपको बताऊंगी कदम आगे। देयर इज समथिंग नोन एज पेसमेकर न्यूरॉन। पेसमेकर आपने नाम सुना होगा। हार्ट में एक सेल है जो हमारे दिल की धड़कन के लिए जिम्मेदार है, मगर वो सेल्स जो हैं वो ब्रेन के कैरेक्टर के, वो हार्ट के कैरेक्टर के नहीं है। अब वो सिर्फ हार्ट में नहीं, कई कम से कम आधा दर्जन जगह हमारे शरीर में वैसे सेल्स हैं जो पेस मेकर की तरह काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन, आप चाहिए तो रेस्पिरेशन हम नहीं रोक पाएंगे, यू कांट अनडू रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज ऑटोमेटिक, चलता रहे। उसी में एक है रेगुलेटिंग योर मूड।
उसका भी अपना एक पीस पेपर बनाओ जो कनेक्ट होता है सर्केडियन हमारे दिमाग में समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम। इसलिए अंधेरे में हमारे इमोशन अलग होते हैं, उजाले में अलग होते हैं, बरसात में अलग होते हैं, गर्मी में अलग होते हैं, वगैरह वगैरह। सो इमोशन रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स है, मगर हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक बात है, व्हाट रेगुलेट्स आवर माइंड, मूड, memory and brain without any side effect is योग क्रिया। तो आप उसे करें, अपने आदत में डालें, कभी किसी से ना पूछें कि आप करते हो क्या, वो करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम, मगर अपने आप को कन्विंस करेंगे 10 लोग करेंगे तब मैं करूँगा, वो ठीक। कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना चाहिए। आप अगर चाहें तो वैज्ञानिक तथ्य योग की उस पर बहुत ज़्यादा है, आप मेरी किताब देखेंगे साइंस ऑफ सक्सेस, उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप पाएंगे उसमें। और आई थिंक मेरा ख्याल है आपको मैंने शायद कर दिया। एक प्रश्न, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, वास्तव में श्रोता लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं व्याख्यान का। तो ओमकार सिंह बीएससी कृषि का प्रश्न आया है। ओमदीन सिंह, हाउ टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ इन अवर डेली लाइफ, काइंडली प्रोवाइड गाइडेंस। और एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे आया है, हिंदी में आया मुझे, आज के छल कपट अन्याय अनीति दमन के दौर में अपने आप को मानसिक रूप से मैं कैसे बचाऊं। जैन आने का बड़ा फायदा है, इसलिए मैं ध्यान से नहीं, इसलिए मैंने ये शुरू किया। मैं बताऊँ, ये मैं शायद ये 8वीं यूनिवर्सिटी में हूँ अभी पिछले 3 महीने, तो कई जगह कोलैबोरेशन हुए, बातचीत चल रही है, और अब इसके बाद आगे भी जाना है। फरवरी मत तक मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम 10 और यूनिवर्सिटीज में मैं जाना चाहता हूँ। जो प्रश्न आपने उठाया उसे हमने डील किया है बुक द बैटल विद इट, वो अभी 2 महीने पहले पब्लिश हुई। उसमें एक कहानी है, एक महिला की कहानी है, और उसके जीवन पर आधारित ये है कि हाउ डू आई डील विद चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ। वो हिंदी में आएगी रिश्ते आंचल के, अभी शायद आई नहीं है, मैंने देखा। जीवन में जो छल कपट वाली समस्या है, वो आपको क्या लगता है वो आज की समस्या है? ऐसा तो है नहीं। हम आजकल छल कपट से परेशान बहुत होते हैं। तो ये मुझे ये बता, जब मैं मान लीजिए ये मैं अपना प्रश्न सोच के बताऊं, तो मुझे लगता है कि देन आई थिंक मेरी जो छल कपट से निपटने की क्षमता है वहां पर। तो पहली बात तो अत्यधिक विश्वास, ये विश्वास की छल कपट होगा ही। लेट अस बी ऑर्गेनिक, लेट अस बी लॉजिकल, कि दुष्ट लोग समाज में रहेंगे, वो इसी समाज के हिस्सा, तो आदमी को सावधान रहना चाहिए। एक पहला वैशिष्ट ये। फिर हमें वो क्षमताएं होनी चाहिए कि हम अच्छे बुरे का, देखिए शिक्षित आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके पास लोग आकर पूछेंगे कि इसी सवाल का जवाब दीजिए कि मैं क्या करूं, और आपका दायित्व बन जाएगा कि आपको इसको कहना पड़े। और उत्तर ये है कि हमें अच्छे बुरे में पहचान करना आना चाहिए। अच्छे बुरे की परिभाषा नहीं बदलती, वो शाश्वत है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा। धोखा देना, झूठ बोलना बुरा है, उसे किसी भी कालखंड की किसी भी परिभाषा में ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आज के परिवेश में झूठ बोलना ठीक है। क्या मानते हैं? ऐसा नहीं समझ। तो बैक टू बेसिक्स, डू योर ABCD, संस्कार में रहें, अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाएं, अच्छे बुरे में फर्क करना सीखें, और फिर जो परिणाम हो उसे भुगतने की क्षमता भी रखें।
जैसे साधारण बहुत से लोग नहीं, मैं पैसे देकर ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। एक सरकारों में दिक्कत आप भी जानते हैं। अब उनकी बच्चे प्रेशर डालते हैं कि नहीं मैं तो स्कूल में चेंज करूँगा, आप कुछ करो। ये हमारे जनजीवन की समस्या है। मान लीजिए पिताश्री ने रूल तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो उस वक्त आत्मग्लानि में मर जाने की आवश्यकता नहीं। दिस इज ए कॉग्निटिव प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। You solved a problem by certain rule. You have not changed the law of the rules. Principles नहीं change किया आपने। Anyway, तो ये कुछ अपने मनोवैज्ञानिक वर्चुअल जो मैंने नाम दिया, उन पे हमें विश्वास होना चाहिए और अपनी लाइफ को रेगुलेट करना चाहिए। दो प्रश्न और आए सर। जी, हाँ। दोनों प्रश्न मिला रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी बिल्कुल प्यासे बैठे थे आपको सुनने के लिए। वास्तव में बता रहा है कि आज की पीढ़ी कितना अधिक इस टॉपिक को गंभीरता से लेती है। पहला प्रश्न आया है क्लिनिकल व्यास का, MBA कर रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से, कि मानसिक स्वास्थ्य के रोगी जब पास में आते हैं या फिर शिकायत लेके आते हैं मानसिक स्वास्थ्य विकार संबंधी, तो उनको हम कैसे काउंसलिंग करें, उसको हम कैसे टेकल करें, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्या टूल्स हैं। और एक प्रश्न जो आया था, एक प्रश्न उषा वारसी और कवि कोमल, युवराज, इन बच्चों ने लिख के दिया है, चिराग, गौरव, सबने लिख के दिया है कि सर माता पिता के स्वभाव के साथ में हमारे स्वभाव को हम कैसे समायोजित करें, एडजस्ट करें। करिए, हाथ खड़े करें बच्चे लोग, चारों हाथ खड़े करें। युवराज, स्वागत है। इन बच्चों का कहना है कि माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं उनके साथ हम अपनी अपेक्षाओं को कैसे समायोजित करें। ये आखिरी प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न दिए जाएंगे। थैंक यू। तो ये माता पिता के प्रश्न से शुरू करें। देखिए, हमारे संस्कार में ये जरूर सिखाया गया है कि माता पिता हमेशा सही कहते हैं, सच कहते हैं। मगर आप सोच के देखिए, माता पिता बहुत से लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं रहते और आप तो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज्ञान की गंगा अर्जित करते हैं। ऐसा भी संभव है कि माता पिता किसी तथ्य के मामले में इल इन्फॉर्म हो, लेस इन्फॉर्म हो या ना जाने। तो पहला गुण है किसी भी, ये सवाल क्या है, यू आर रेजिंग क्वेश्चन हाउ टू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहे आपकी दोस्ती की कॉन्फ्लिक्ट हो, रोमांटिक लाइफ की हो, एकेडमिक लाइफ की हो, टीचर से सवाल पूछने की हो या पेरेंट्स की। आपका मूल प्रश्न क्या है? यू वांट टू नो हाउ डू आई रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट विदाउट हैविंग ए एडवर्स आउटकम। दोनों बातें हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें पहले तो ये इन्वॉल्व है कि हम अपने को जानें कि हमें ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों नहीं। Do I not trust myself or do I not trust my father or mother? जो वो कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ रही, या जो मैं समझती हूँ ये वो नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ किसका है? अगर आपने वो किया जो वो चाहते हैं तो फायदा किसका है? अगर आपने वो किया जो आप चाहते हैं तो फायदा किसका है? आपको थोड़ा समय लेना चाहिए इसे रिजॉल्व करने के लिए। अब हाउ डू आई रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, एक बड़ा अच्छा विषय है और मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा पढ़ें। इसमें हमारी इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और पास्ट एक्सपीरियंस, ये चारों चीज़ें काम में आए। फिर आता है कि क्या रास्ते क्या क्या हैं। बहुत से रास्ते, समस्याएं ऐसी हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा भविष्य ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा। आपको इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि 90% से अधिक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एजुकेशनल काउंसलिंग से रिजॉल्व है। आपको किसी की बात समझ में नहीं, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बहुत से लोग सही सूचना से इंफॉर्मेशन वर्क्स, इंफॉर्मेशन वर्क। तो आपको इस पर विश्वास रखना चाहिए। विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैं गलत हूँ, इज इट दैट आई एम ऑन द रॉन्ग साइड। अब तो ये कुछ तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से। आप इस पर लिखें, सोचें और आगे प्रश्न हो तो मुझे लिखिए। ये दिस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड how to resolve conflict. Now the question comes, how do I live with
when there is problem with what others want, right? ये सवाल था? वो भी था एक क्वेश्चन आया जी, आप बताएं। अपनी मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाया? मानसिक क्षमता को मैंने अभी बताया कि देखिए, एक सवाल था कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य यह है जो आपको सुख का अनुभव देता है, जिस पे सुख के अनुभव के साथ साथ आप स्वस्थ रह सकते। जहां सुख के अनुभव के साथ स्वस्थ रहते हुए अच्छी उत्पादकता लास्ट, वो अच्छा मानसिक। ये सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स। मानिए जैसे सक्सेस, हम सभी सफल होना चाहिए, कोई असफल नहीं होना चाहिए। तो वी ऑल वांट टू सक्सीड, वी मस्ट सक्सीड। मगर क्या हम चाहते हैं कि सक्सेस और अचीवमेंट में फर्क है? अचीवमेंट, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस रास्ते जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, आप पहुंचे। दूसरा, क्या आप पहुंचे और आपको अच्छा लगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस प्लस अचीवमेंट इज डिफाइंड एज सक्सेस। ये विषय मैनेजमेंट साइंसेस का मेरा नहीं, फिर भी थोड़ी दो चार बातें। अब सच्चाई क्या है, आप देखिए। आप देखिए कि द कॉस्ट ऑफ अनहैप्पीनेस among successful people is about $63 billion calculated in US. लगभग 50% बड़े-बड़े CEO, डॉक्टर, इंजीनियर लाइफ के 10 साल में डिसफंक्शनल है। They develop either a mental disorder or alcohol or drugs or divorce or separation, whatever. So बड़ी मुश्किल से वो सक्सेस होते हैं। Look at the struggle, कहाँ से चल के कैसे सकते 10 साल भी नहीं चलता है सक्सेस का खेल। और यही फाइंडिंग एसोचैम इंडिया ने रिपीट किए आपके यहाँ। इसलिए आदमी को रास्ता चुनने में सजग रहना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि हमें सुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी। मतलब अगर आपने ये डिसाइड किया कि आई विल लिव एज एन अनसक्सेसफुल मैन, दैट्स फाइन, as long as it doesn't affect your inner self. So what is the core value? Core value में देखिए, core value में there is nobody else but you. You will define the purpose of life. You will define the content of pathway. You will decide the course. You will decide the quantum of your pain, and you alone decide the treatment of that pain. But my dear friend, please remember, mental strength is limitless. कोई उसकी कोई सीमा नहीं। असीमित अगर कोई चीज है तो वो है मानसिक शक्ति। आप उसे पहचानें, जाने, पुकारें, आवाज दें। हम रोज प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? वो शक्ति हमें दो। सब लोग करते हैं। क्या मांग रहे हैं आप आके? What are you asking? शक्ति है। आप क्षमता मांग रहे हैं, इसलिए कि हम जिन लोगों को जो पिछड़े हैं, बुरे हैं, कमजोर हैं, उनकी मदद कर सकें। तो आप किस लिए मांग रहे हैं? फॉर ह्यूमन कॉज, नॉट फॉर योरसेल्फ। तो उसी प्रार्थना में सारी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ कही जा चुकी, जिसे आप रोज दोहराएं। सिर्फ ना दोहराएं, उसे जिए। आखिरी में दाएं हाथ को देना चाहिए और बाएं को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। वॉलंटरी एक्टिविटीज से अच्छी कोई चीज नहीं है मानसिक शक्ति को बढ़ाना। आप सब समाज में जाएं, लोगों के लिए काम करें, किताबें बंद करें। इसलिए मैंने कहा, आपके बच्चों की जो लाइफ है, मुझे टाइम होगा भी नहीं आपका। आप आई होप दे आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। हाथ को हाथ पकड़ने का समय नहीं है, हाथों की गर्मी खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे कि देखिए इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं।
तो उत्तर तो आप जानते हैं। समाज को बदलने के सोचे कि पहले अपने आप को पहचान कर अपने को बदलने में विश्वास रखें और उसी में जीवन है, उसी में आपकी सक्सेस भी है। ऐसा मत समझिए कि इस रास्ते से जाकर आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। मे बी यू विल बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारे कार्यक्रम के इस कार्यशाला के अंतिम सोपान में लगभग 1 दर्जन से अधिक पूछे गए विभिन्न कठिन प्रश्नों का सर ने बहुत ही अच्छा समाधान प्रस्तुत किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे उपस्थित विद्यार्थी अपनी मानसिक स्वास्थ्य की जो टॉनिक है सुदृढ़ता को और अपग्रेड करेंगे, उसका वो उसके स्तर का एक्शन करके अपने आप को और मानसिक रूप से अच्छा बेहतर पाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर हमने सत्र की रिपोर्टिंग के लिए प्रबंध संकाय के अध्यक्ष और सूत्रधार आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कामना मिश्र निर्णय दूंगा कि वे आए, सत्र की रिपोर्टिंग करें और